Hi everyone. In the previous video we understood that how do we use the restrictions for calculating the domain of analytical functions. Now in this video we'll take some examples, some problems, that how do we use those restrictions, multiple restrictions at a time, for solving the questions effectively, right? So let's summarize the things. The basic strategy that we'll be using in all the problems is, जैसा हमने पहले भी देखा था, step 1, write all the restrictions. This is the first requirement. And then step 2, solve each restriction and take common values. So this is the general problem solving strategy for the problems related to the domain. So now let's take the examples one by one. So let's start with the first problem now. The first question actually uses the concept of NCR. Now remember that NCR as well as NPR mathematically they are defined when n is a natural number, r is an whole number, and r is less than or equal to n. These are the three restrictions which are used by the binomial coefficient NCR and NPR. This is the first thing that you have to learn, right? Now in this particular question, if I apply these restrictions, you can learn this, you should learn this. So if I apply these restrictions here in this particular problem, what I get is x plus 1 should be greater than or equal to 1, because it is a natural number, so it has to be greater than or equal to 1, and 2x minus 8 is greater than or equal to 0, because it should be whole number, and x plus 1 should be greater than or equal to 2x minus 8, where x belongs to some integer. X should be some integer. You cannot have fractional values for NCR. N and R should be natural numbers. They should be integers. Natural number, whole number, so they should be integers. So now let's solve each constraint one by one. The first constraint gives you x is greater than or equal to 0. The second restriction is x is greater than or equal to 4, and the third restriction is x is less than or equal to 9. So the common values which satisfy all the conditions is x belongs to 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Keep in mind that x was an integer. ठीक है, अगर आप ये कंस्ट्रेंट भूल गए तो आपका गलत आंसर आ जाएगा. You will get the incorrect answer as 4 to 9. And this will be incorrect, because otherwise with NCR NPR map you cannot put 4.5 C 1.3. Does not make any sense. So keep in mind about this particular condition as well. Now let's take the next problem. Let's take the second problem. Here it is. So again you have to find the domain of this particular function. So first of all we'll write all the conditions. So let's start writing the conditions. We get this particular quantity is with the log, so you get x square minus 5x plus 16 should be greater than 0. This should be greater than 0, right? And again if I find that this entire expression, ये पूरा expression जो है ये भी log के साथ है, तो इस पर भी constraint आ जाएगा. You get 1 minus log x square minus 5x plus 16, x square minus 5x plus 16,
दिस वैल्यू शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसके अलावा बेस ऑलरेडी 1 से बड़े हैं तो उस पर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ तो बाई डिफॉल्ट बेस इज टेकन एज 10। सो in all the calculations the base of logarithm is taken to be 10. So now there are only two restrictions, so we'll solve both the restrictions. Let's start with the first one. So now if I look at this expression, the discriminant of this quadratic is b square minus 4ac, which is less than 0, and this automatically implies that the sign scheme of this expression is always positive. So therefore from here I get कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, हमेशा ही पॉजिटिव है, तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। ध्यान रखिएगा कि इसमें बीच में एंड लगा हुआ है तो मुझे कॉमन वैल्यू लेनी है। तो अब इसको सेकेंड वाले को देखते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 should be smaller than 1, which implies x square minus 5x plus 16 log of this should be less than log 10. Now log x to the base 10 is increasing function. हमने देखा था ना, बेस यदि 1 से बड़ा होता है तो log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में मैं इनइक्वालिटी सीधे हटा सकता हूँ। तो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 should be smaller than 10, which gives us x square minus 5x plus 6 less than 0. This factorizes as x minus 2, x minus 3 less than 0. If I check the sign scheme of this, we get positive, negative, positive, and therefore the answer for this question becomes, this particular part becomes x belongs to 2 to 3, है ना। 2 से 3 के बीच में इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगी वैल्यू। नाउ द कॉमन वैल्यूज, तो फ्रॉम दिस particular expression and from this particular expression our answer becomes x belongs to 2 to 3. This is the final common solution of both the restrictions. So again a straightforward question once the key restrictions of the functions are learnt. Let's take the next problem. So now in this question, first of all we'll write down all the constraints and then we'll solve them one by one. So the first constraint is this particular quantity, this particular quantity inside the root. So 3 minus x should be greater than or equal to 0. Again, and we have one more quantity inside the root, which is this entire thing. Now 2 minus, so we get 2 minus root of 3 minus x. This should be greater than or equal to 0. And now you have 1 minus root of 2 minus root of 3 minus x. This should be also greater than or equal to 0, क्योंकि eventually ये पूरी चीज़ भी रूट के अंदर ही है. So these are the three restrictions. अब इनको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है. तो let's start with the first one, which is the easiest. So you get x is less than or equal to 3. This simplifies to x belongs to minus infinity to 3. We get this value from here. Now we move to the second one. Now that gives you 2 should be greater than or equal to root of 3 minus x, right? Now both sides of this, both sides are positive. Both sides are, let's say, non-negative. Both sides are non-negative. Therefore we square both the sides. अब आपको this is the basic rule of solving the irrational inequation. So this particular idea is discussed in the video related to the tools required for domain calculations. हमने उसमें डिस्कस करा ये आइडिया है ना कि हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ रैशनल इनइक्वेशंस. तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो वी गेट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
3 minus x, which gives you x should be greater than equal to minus 1. So this gives us x belongs to minus infinity to, x belongs to minus 1 to infinity. So this gives you x belongs to minus 1 to infinity, right? So this was the second restriction, and now we solve the third restriction, which seems to be the lengthiest. So from here I get 1 is greater than equal to square root of 2 minus root of 3 minus x. Now both the sides are greater than equal to 0. Both sides are non-negative. Both sides are non-negative. So we can square both the sides. We can square both the sides. So दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 is greater than equal to 2 minus root of 3 minus x. So now we rearrange this, we get root 3 minus x is greater than equal to 1. ठीक है, टर्म्स को लेफ्ट राइट पे भेज के रीअरेंज कर लिया. अगेन बोथ साइड्स आर नॉन नेगेटिव. Both sides are non-negative, so we can again square. So therefore we can square both the sides, and if we square both sides, we get 3 minus x should be greater than equal to 1, which implies x should be less than equal to 2, यानी कि x belongs to माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 पे क्लोज इंटरवल्स आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2. सो वी गेट दिस कंडीशन. नाउ द फाइनल आंसर विल बी द कॉमन वैल्यूज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तीनों में कॉमन वैल्यूज. तो पहले इन दोनों में कॉमन वैल्यूज देखते हैं. इन दोनों में कॉमन वैल्यूज बच्चों आ जाएगी हमारे पास x बिलोंग्स टू -1 to 3, -1 to 3. और फिर इन दोनों से मेरे पास कॉमन जो आएगा, अब इन दोनों से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आता है, इससे और इससे. सो फ्रॉम हियर वी गेट द कॉमन वैल्यू एज x बिलोंग्स टू -1 to 2. एंड नाउ वी वेरीफाई द ऑप्शन. x बिलोंग्स टू -1 to 2 आया था हमारा, है ना. सो दैट मीन्स वी गेट second option. So again a simple question based on the notion of irrational inequations. इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, दिस वाज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस. चलो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. सो वी अगेन स्टार्ट विद द restrictions first. So the restrictions are sin x is greater than equal to 0 and 16 minus x square should also be greater than equal to 0. These are the two restrictions square roots की वजह से. चलो अब इनको सॉल्व करते हैं. Now obviously algebraic inequations जो होती हैं वो ज़्यादा आसान होती है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. From here I get x square should be less than equal to 16, which gives you x minus 4 into x plus 4 less than equal to 0. If I check the sign scheme of this expression, we get minus 4 plus 4, positive, negative, positive, and the common value, the value like for negative sign we get x belongs to -4 से 4. ठीक है. अच्छा, अब ये मैंने पहले कैलकुलेट क्यों करा, इसके पीछे लॉजिक है. दिस इंटरेस्टिंग लॉजिक बिहाइंड इट. द आइडिया इज मुझे साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज दिस हाउ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स लुक्स लाइक. तो मुझे साइन एक्स का वो वाला पोर्शन चाहिए. आई वांट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब दिस मीन्स ग्राफ ऑफ साइन एक्स शुड लाई अबव एक्स एक्सिस. ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज अबव एक्स एक्सिस. मुझे वो वाला रीजन चाहिए, इज अबव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा एक बार फेयर राइट साइड पे बना लेते हैं. लेट्स ड्रॉ दिस एंटायर फिगर ऑन द राइट साइड. सो मे बी दिस इज द ग्राफ ऑफ
sin x this is a graph of sin x, right? And this value is 0, this is pi, and this is 2 pi, this is minus pi, minus 2 pi, and then this is 3 pi by 2, and this is minus 3 pi by 2. तो ये जो कंडीशन है sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन कह रही है कि वो वाला रीजन ढूंढो जहाँ पे sin x का ग्राफ y इक्वल टू 0 लाइन से ऊपर है, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है. और ये कंडीशन मुझसे कह रही है सेकंड वाली कि यार वो रीजन ढूंढो जिसमें x माइनस 4 से 4 है. तो यदि हम x की वैल्यू माइनस 4 से 4 रखें, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 4 to 4, अच्छा दिस वैल्यू वॉज, एक ये छोटा सा करेक्शन यहाँ कर लेना, दिस वॉज माइनस 3 पाई बाई 2 है ना. तो यदि हम x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू पहले से कंस्टेंट है कि माइनस 4 से 4 के बीच में होनी चाहिए. तो अब x की वैल्यू माइनस 4 से 4 कहाँ पे होती है? देखो दिस इज माइनस 4 यहाँ पे आएगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ माइनस पाई विल बी माइनस 3.14 एंड दिस वैल्यू इज पाई बाई 2 इज 1.57, सो दिस वैल्यू इज अराउंड माइनस 4.71. तो माइनस 4 इधर आया होगा और 4 इधर कहीं आया होगा, दिस वैल्यू इज 4. तो सेकेंड कंस्टेंट बच्चों कह रहा है कि ग्राफ में मैं सिर्फ x की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक ही ले सकता हूँ, आई कैन ओनली टेक द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम हियर टू हियर. और इसमें भी मैं चाहता हूँ कि साइन x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर भी हो. x की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए माइनस 4 से 4 तक, और उसमें भी साइन x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए. तो अगर हम देखें साइन x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है, तो आप देखोगे एक तो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन में साइन x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आता है, और एक हमारे पास प्रोबेबली ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पोर्शन में भी साइन x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, और ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास ये माइनस 4 से 4 के बीच में ही है ऑन दी x एक्सिस. तो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू? कॉमन वैल्यू होगी मेरे पास x बिलोंग्स टू माइनस 4 से लेके माइनस पाई, मतलब बेसिकली ये वाला पूरा रीजन माइनस 4 से माइनस पाई, मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू x एक्सिस के लॉन्ग. एंड अगेन एक हमें ये वाली वैल्यू चाहिए अलॉन्ग x एक्सिस, है ना. तो दिस इज यूनियन 0 से लेके पाई. दिस इज द आंसर. This is slightly tricky question, it's not easy, but then the key idea is writing the two restrictions and then taking the values common. We now move to the next problem. So this question is actually again on logarithmic inequation. The basic idea will be the use of logarithmic inequation. So first of all we write down the constraints. So there is nothing in the denominator which is a variable. So what I find is that this 5x minus x square upon 4, this quantity should be greater than 0 क्योंकि log के साथ है, and log 5x minus x square upon 4 in the base 1 by 2, this value should be greater than equal to 0 क्योंकि रूट के अंदर है. इसके अलावा डिनोमिनेटर में देयर इज नो वेरिएबल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, टेन कुछ भी नहीं है, बस दीज आर द ओनली टू रेस्ट्रिक्शंस. तो नाउ विल सॉल्व दीज टू रेस्ट्रिक्शंस. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो यू कैन राइट दिस एज x इंटू 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर हम इसकी साइन स्कीम चेक करें तो 0, 5, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है. तो ये ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आता है? दिस मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 5. ठीक है. अगर हम सेकेंड वाले पे चलें तो अब इसमें आपको पहले लॉग हटाना होगा. तो वी राइट दिस एज log 1 by 2 5x minus x square upon 4 should be greater than equal to log, है ना, 0 को
हम लिख सकते हैं log 1 to the base half। और सिंस अब log का जो बेस है वो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि, है ना, ये हमने देखा था, अगर log का बेस 1 से छोटा होगा तो log डिक्रीजिंग होता है, और यदि कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसमें फंक्शन को हटाने के बाद इन इक्वेशन रिवर्स होती है। तो आई राइट 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको बहुत ध्यान से देखना आप। यहाँ पे बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, क्योंकि बेस का ध्यान नहीं रखोगे तो आप इन इक्वेशन फ्लिप नहीं करोगे, और फ्लिप नहीं करा तो फिर ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। सो नाउ वी कंटिन्यू विद दिस। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गेट एवरीथिंग ऑन द राइट साइड, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि हम इसकी साइन स्कीम चेक करें तो 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, and this gives you x belongs to माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 to इन्फिनिटी, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ यू हैव टू टेक द कॉमन वैल्यू। अब मुझे देखना है इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज़ क्या आती हैं, एंड मतलब कॉमन वैल्यूज़। तो द कॉमन वैल्यूज़ आर x belongs to 0 to 1 union 4 to 5. So this is the domain of this function. The only trap in the question was कि बेस log का 1 से छोटा था, तो आपको इन इक्वेशन फ्लिप करनी चाहिए थी। एक और एग्जाम्पल करके देख लेते। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो सबके लिए पहले रिस्ट्रिक्शंस लिखने होंगे मुझे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द रिस्ट्रिक्शंस वन बाय वन। द फर्स्ट कंडीशन इज साइन cos x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, it should not greater than equal to 0 because sin cos x is also in denominator. It is also in denominator. तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तो इस पर पहला कंस्ट्रेंट हो गया ना। एंड अच्छा, साइन इन्वर्स भी है, तो इसका मतलब हुआ कि -1 से लेके 2x अपॉन पाई की वैल्यू इस इंटरवल में होगी। ठीक है, साइन इन्वर्स की वैल्यू हमेशा इनपुट जो होता है -1 से 1 होना चाहिए। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x शुड बी नॉन ज़ीरो, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x शुड बी नॉन ज़ीरो। इसके बाद फिर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है विच इज एंड ln ऑफ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -10x/2, यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। और मैंने ये ब्रैकेट्स बना दिए, तो आई हैव टेकन माइनस कॉमन। दिस क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, और भी कंस्ट्रेंट्स हैं। एंड क्वेश्चन में 10x/2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो x/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2, है ना। 10 के साथ जो भी होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। एंड लॉग के साथ भी ये चीज़ें, सो लॉग के साथ हमारे पास था 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x/2 प्लस greatest integer of -10x/2. This quantity should be greater than 0. So there are so many restraints on this particular function. खैर, इसमें परेशान होने की बात नहीं। Let's start solving them one by one. So start with the first one. फर्स्ट कंडीशन बच्चों कहता है कि साइन cos x पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए देखो, इसका मतलब क्या हुआ। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। लेट्स से आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
साइन एक्स, ठीक है, आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. 0 पाई माइनस पाई. अब ये कह रहा है कि यार साइन के इनपुट में तो जाएगा कॉस, और कॉस का आउटपुट होता है -1 से 1. तो इसका मतलब जो साइन का इनपुट बनेगा, दिस एक्सप्रेशन टेल्स यू दैट द इनपुट ऑफ साइन will be between -1 and +1, क्योंकि कॉस का जो आउटपुट है वो साइन का इनपुट बनेगा. आउटपुट ऑफ कॉस विल बी इनपुट ऑफ साइन. सो द कंडीशन इज कि साइन का जो इनपुट है वो -1 से 1 आएगा. तो अगर हम -1 देखें तो -1 विल बी समवेयर हियर, और 1 देखें तो इट विल बी समवेयर हियर. तो वो कह रहा है कि भाई साइन का जो आउटपुट है, साइन ऑफ कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. तो साइन का आउटपुट तो पॉजिटिव तभी आएगा जब इसका इनपुट 0 से 1 हो. तो दिस सिंपली मीन्स cos x belongs to 0 to 1, है ना, क्योंकि यदि cos x की वैल्यू 0 से 1 होगी, इफ cos x lies between 0 and 1, तो फिर साइन के इनपुट में वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, और उसी केस में साइन का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहेगा. यदि आप cos की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक डाल दोगे तो साइन के ग्राफ में जो वैल्यू जाएगी इनपुट, वो निगेटिव इनपुट जाएगा, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको पिंक से. ये वाला इनपुट जाएगा, और इस इनपुट पे आप देखोगे साइन की वैल्यू निगेटिव आती है, जबकि मुझे साइन का आउटपुट पॉजिटिव चाहिए. तो इसीलिए ये वाला रिस्ट्रिक्शन हट गया. वी गेट cos x बिलोंग्स टू 0 to 1. और यदि cos x की वैल्यू 0 से 1 है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हमने अभी देखा था कि cos x पॉजिटिव है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 2, है ना. इफ़ यू रिकॉल, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में किया था कि cos की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब ग्राफ यहाँ पर हो, -π/2 से π/2, और सिंस ये 2π पे रिपीट करता है तो इसलिए हमने इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे 2n π जोड़ दिया. दिस इज अगेन द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. तो पहले कंस्टेंट से बच्चों हमारे पास ये आता है वेयर n is some integer. So this is the first constraint. So now we solve the second constraint. This should be easy. Second constraint सिर्फ आपको ये कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट -π/2 से लेके x की वैल्यू π/2 तक होगी. दिस इज द ओनली कंस्ट्रेंट. ठीक है. अच्छा, यहाँ सब एक चीज़ इंटरेस्टिंग पकड़ में आती है. भाई ये कंस्ट्रेंट कह रहा है कि -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और ये वाला कंस्ट्रेंट कहता है कि -π/2 से π/2 2n π. सो इन दोनों की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो यही वाला इंटरवल हो जाएगा. द ओनली कॉमन वैल्यूज फ्रॉम दिस एंड दिस विल बी, द कॉमन वैल्यू फ्रॉम दीज टू विल बी x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओनली. क्योंकि अगर आप ये वाले इंटरवल्स देखोगे तो आपको वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली हैं. हमें वैल्यू मिलेंगी -π/2 से लेके π/2, यदि हम n को 0 डाल दें. यदि हम n को 1 डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 3π/2 से लेके 5π/2, है ना. ये इस तरह से चलते रहेंगे. और ये कंस्टेंट ऑलरेडी कह रहा है कि सिर्फ 0 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक ही होना चाहिए. तो द ओनली कॉमन थिंग कैन बी दिस एंटायर इंटरवल. ठीक है. चलो अब थर्ड पे चलते हैं. थर्ड कंस्टेंट भी आसान सा है. ये कहता है कि भाई -x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए. तो कौन से नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है. दिस मीन्स -x शुड नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर. और यदि -x इंटीजर नहीं, इसका मतलब वो x भी इंटीजर नहीं है. दिस मीन्स x शुड नॉट बी एन इंटीजर. ध्यान रखना, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है. तो x इस इंटरवल में तो है ही, और इंटीजर भी नहीं है. तो दैट मीन्स आई हैव टू एलिमिनेट सम ऑफ द वैल्यूज. देखते हैं कौन कौन सी अभी बाद में. अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे. नेक्स्ट वाला थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, लेकिन उतना है नहीं जितना दिख रहा है ये, बिकॉज आई विल बी यूजिंग अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन दिस वन. तो मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है. दिस वैल्यू इज
this value is always 0 और this is always -1. 0 कब होती है? जब x इंटीजर हो, और यदि x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है -1. तो आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि आप देखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -10x/2, दिस शुड नॉट बी 0. इसका मतलब हुआ कि दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू -1, है ना, क्योंकि 10x/2 इंटीजर कैसे आ सकता है? 10x/2 की वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको बोला हुआ है पहले से ही कि x इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल 10x/2 कैनॉट बी 0, कैनॉट बी एन इंटीजर, कैनॉट बी इंटीजर. क्योंकि ये इंटीजर कहाँ पे होता है? ये इंटीजर होता है -10 में x की जगह अगर हम रखते -π/2, π/2 या 0, लेकिन ये तीनों वैल्यूज तो मैं रख ही नहीं सकता, बिकॉज आपको मना करा हुआ है, ये ओपन इंटरवल कह रहा है और ये वाली वैल्यू मुझे कह रही है कि x कैनॉट बी इंटीजर, सो देयरफॉर x कैनॉट बी 0 ऑल्सो. तो x 0 भी नहीं हो सकता. इसका मतलब ये क्वांटिटी इंटीजर हो ही नहीं सकती, और अगर ये इंटीजर नहीं हो सकती तो दिस मीन्स कि 10x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 -10x/2 की वैल्यू -1 ही होगी, और यदि इसकी वैल्यू -1 है तो इसका मतलब हुआ दिस इज सिंपली ln ऑफ 2 एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट 0. तो यहाँ से मेरे पास देयर इज नो मीनिंगफुल रेस्ट्रिक्शन, द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज x बिलोंग्स टू r. सिर्फ x बिलोंग्स टू r आ गया सीधे. अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन. यहाँ से भी हम कैंसिल करते तो वी गेट x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड इन मल्टीपल ऑफ पाई. तो ऑब्वियसली जो मेरे पास अभी तक इंटरवल चल रहा है उसमें x -π/2 से π/2 और एक ये वाला कंडीशन है ना. इनको भी ग्रीन में लिख देते हैं, इसको भी लेट्स राइट डाउन दिस इन ग्रीन. तो अभी तक मेरे पास ये दो रिस्ट्रिक्शन है ना. आई री राइट दिस रिस्ट्रिक्शंस हियर. लेट्स राइट दिस रिस्ट्रिक्शंस हियर. मेरे पास द ओनली रिस्ट्रिक्शंस राइट नाउ आर x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 and x cannot be an integer. This is the only restriction that we have. अब ये कंडीशन कह रही है कि भाई x पाई का ऑड मल्टीपल्स नहीं हो सकता. अब पाई के ऑड मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? -π होता है, पाई होता है, 3π होता है, -3π होता है. तो आप देख सकते हो कि x, वो कह रहा है x इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो इन दिस इंटरवल x कैनॉट टेक दीज वैल्यूज, है ना. x कैनॉट रिटर्न यू दीज वैल्यूज. तो ये भी, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं. दिस इज ऑलवेज ट्रू इन दिस इंटरवल, दिस इज ट्रू. तो x बिलोंग्स टू r आ गया अभी भी. और फाइनली अब हम इस वाली कंडीशन पे चलते हैं, है ना. वी मूव टू द लास्ट कंडीशन. तो लास्ट कंडीशन कहता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -10x/2 should be less than 1. So this is obviously true. This is true for all values because हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि द वैल्यू ऑफ, है ना, हमने ये रिजल्ट यहाँ देखा था. लेट्स सी, अभी हमने देखा था यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू -1 एंड -1 1 से छोटा कब होगा? हमेशा होगा. तो यहाँ से भी मेरे पास कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं है. So from here, like what we get is the only restrictions that we have are now that एक तो ये था x belongs to -π/2 to π/2 -0, and we also use this restriction that x should not be an integer. So that means मुझे इस सेट में से you have to remove the integer values also. The only integers which can still exist in this set are x equal to ±1. So my final answer now looks like x belongs to -π/2 to π/2 except 0, -1 and +1. This is the final answer of this particular problem. Definitely it was a challenging problem, but then after sufficient practice you should be comfortable with these level of problems.